technology, by way of which he's been involved in a lot of accreditations, etc., of the NIA, and he has developed expertise in outcome-based education. Professor Beg happens to be an academician of repute. He has experience studying, teaching in universities in India and abroad. That includes Jamia Millia Islamia, that includes Berkeley, where he has been. And Professor Beg was also a participant of the LEAP program, a very prestigious program in which he visited the Ohio State University, and he has been our resource person for quite some time, and our participants have always been benefited by his discourses. So thank you so much for joining us, Professor Sufyan Beg. And once again, I regret the little technical issue that we had. We look forward to listening to you. Assalamu alaikum and good morning to everyone. Just Good morning, sir. Assalamu alaikum, sir. Good morning, sir. Walaikum assalam. Just give me a few minutes. Good morning, sir. Good morning, good morning. Assalamu alaikum. Just give me a few minutes. Let me share my screen and then we get along. Okay. So I have to share, right? Full screen. Is the technical support available? Is there someone there for the technical? Mazhar, can you please look into it? Yes. Mazhar, are you there? शेयर ऑप्शन आपने किया हुआ है मेरे लिए? नहीं सर, करते तो हैं सबके लिए. सर राइट हैंड के बगल में साइड में प्रेजेंट नाउ ऑप्शन है. जी सर. Arrow upward. राइट हैंड जो है सर उसके Just a minute, Mazhar, sir is having an issue sharing his presentation. Can you look into it? Have you made the share option available for him? या मैम वी कैन नॉट मतलब मींस हम रोक नहीं सकते उसमें कुछ, वो तो अवेलेबल रहता है. चलिए मैं शेयर में जा रहा हूँ. फुल स्क्रीन मैंने चूज किया ना. जी सर. तो फुल स्क्रीन में तो हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या स्क्रीन? No, not as yet. नो सर. आप मैकबुक से कर रहे हैं सर? गूगल मीट में ही प्रेजेंट नाउ है सर, इसे आप शेयर करें तब दिखाई देगा सर. सर मैकबुक से कर रहे हैं आप? नहीं हो जाएगा. एक मिनट होल्ड ऑन कीजिए. कर रहा हूँ मैं. विंडो. सर आर यू यूजिंग मैकबुक? नहीं. अब दिख रहा होगा ना? नो सर, नो. यस सर आ गया. ठीक है. So now everyone else can please mute your microphones. And if there is any problem or anything that you want to interject and you want to say in between, you can just let me know, right? So it should be full screen now. Can anyone respond? No sir. Yes, sir. Sir, you have to Yes, so you are in the edit mode, Professor Beg. You are in the edit mode. So can you please show your presentation in the play mode? नहीं, इस वक्त मैंने अपने एंड पर प्ले मोड ही किया हुआ है. अच्छा. I just changed the slide. Slide show. अगर आप बता दें सर. Can I interrupt one thing? It often happens problem with the PowerPoint to slideshow. You can go to the reading mode, the next one to the PowerPoint on the left side. That will do the same thing, but it will allow the slides to be visible. स्लाइड शो नहीं आ रहा है क्या आप लोगों के पास?
No, No, sir. no, sir. नहीं सर, एडिट मोड में है अभी। इसको स्लाइड शो, गो टू स्लाइड शो। सर वो जो नीचे से फुल स्लाइड शो होता है उसको We are getting, sir. मेरे सर ये end तो से- आप जूम कर रहे हैं सर। चलिए ये भी मेरे ठीक है। नो, इवन दैट्स ओके, नॉट बैड। मैंने एंड पर अपनी स्लाइड शो कर लिया है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं सर, यू कैन गो स्लाइड शो हो रही ये है। तो दिख रहा है, विजिबल ना। Sir, no problem. You can continue, sir. Sir, continue. So please continue. चलिए ठीक है, ओके। So we are going to talk about the outcome-based education and quality assurance, right? These two things are very closely related. So let me begin by saying that outcome-based education is very much similar to our sports. In sports, what we do, we set the bar first, and then we try to assert in order to cross that bar, right? So that is what outcome-based education is. We set the bar of education in front of us, and then we try to cross that bar by asserting that much extra. So that is what outcome-based education in a nutshell is. And obviously that bar is set using the quality standards that we have set for ourselves. So let me get along and things will be more clear then. My first slide is quantifying quality. Now, since our early age, we had been thinking that quantity and quality, they are, contradictory terms in the sense that they cannot be combined together. When you talk about quality, you cannot quantify it, and when you talk about quantity, you cannot attribute quality to it. But we have a strong feeling, and in fact, this is a very established fact, that what you can't measure, you can't control. So if you're not able to measure quality, we won't be able to measure quality either. For example, if you can't measure temperature, you can't control it. If you can't measure speed, you can't control it. In order to assert what I'm saying, let me give you a real incident, although a sad one, but still we have to learn lessons from all around. A few years back, there was this Air France flight which was flying from somewhere in South America to Paris, but unfortunately it crashed into the Atlantic Ocean. A sad incident, of course. But then when people dug out the mortal remains from the depth of the ocean, they found out that the bones of the passengers were broken before they drowned. Why I say before they drown? Because once they are inside the ocean, there is no way that their bones can be broken, and it was broken across all the passengers. So they started thinking about it, and then finally they concluded that most probably the sensor, the speed sensor of the aircraft had malfunctioned, because of which the plane oversped and it broke into two because of the air pressure. Even though the air is very thin at that height, but given the speed at which the aircraft was moving, because the speed sensor had gone bad, the aircraft broke into two, and because of the air pressure, the bones of the passengers were broken before they fell and drowned into the ocean. So a very sad incident, no doubt about it, but it gave us a lesson. If you can't measure speed, you can't control it. When you're flying at that altitude, you don't have trees, you don't have the ground, you don't have things around you to make a guess of the speed that you are moving at. So likewise, if you can't measure temperature, you can't control it. And so on, if we go on saying, we can say that if you can't measure quality, you can't control it either. So in order to measure quality, we have to quantify quality. So assessing the attainment of quality is the key to quality control and enhancement. So this is the bottom line. We do have to assess the attainment of quality. How much have we attained the quality?
then only we can go for quality control and enhancement of quality. So when we talk about levels of quality in education, first and the foremost one is the approval, which guarantees a bare minimum. Suppose we are going for approval of a college, then we have to talk about the bare minimum facilities. Are the classrooms there? Are the teachers there? Are the libraries there? And so on. Bare minimum, and you get the approval. For example, when I talk about technical education, because I'm primarily the principal of an engineering college, so All India Council for Technical Education looks at the approval. If you talk about a university, the University Grants Commission accords approval to an institution, right? Beyond approval. Now, at this point of time, let me give you something, a point that you may not have been knowing so far. In India, no university can become a university unless passed by an act of law. So, in order to make an institution into a university, you have to necessarily get it passed by an act of law. If it happens to be an act of the Indian Parliament, that becomes a central university. And if it happens to be an act of law in a state legislative council or state legislative assembly or state government, then it becomes a state university. We all know the procedure. A bill has to be presented, it has to be passed by a majority in both the houses. In the case of center, it is Lok Sabha, Rajya Sabha. In the case of state governments, we have assembly and council, state legislative assembly and state legislative council, and then it goes to the president for the signatures or to the governor in case of a state law. So all those steps have to be completed before a university can become a university. I cannot open a university and call itself, I cannot open an institution and call itself a university by myself, regardless of how good or how well I've established that institution. So that is something that we have to keep in mind for the Indian context. I am not commenting on the other governments, but in India, it has to be necessarily passed by an act of law. So approval is the first step. Next comes ISO, which is a standard for quality, no doubt. The full form we all know is International Organization for Standardization. So certain quality standards are met. Now we are not just contented with whether the classroom is there or not. We have to look into the quality of the classroom also. We have to look at the qualification of teachers. We have to look at the quality of books available in the library. We have to look at the quality of equipment and other facilities in the laboratories before a certain quality certification is done. So should that do? Approval plus ISO, should that do? May have done, but there is something additional that accrues when we have got the accreditation. So accreditation is not just quality check, it also brings in mutual recognition. What do I mean by that? An accreditation that happens by virtue of an accord or an agreement between several governments. So when we make an agreement, we agree to the fact that we will mutually recognize the degrees accredited by the respective governments. So that mutual recognition is something which is an extra in the accreditation exercise. So this is something that could not have been achieved using just the approval or the ISO. I may have the best ISO certification, but the other governments are not duty bound to recognize my institution. They may not. But if I have an accreditation and I have an accord with the governments, then I'll be able to press on them that, look, you have signed an agreement and you have to necessarily recognize the degree that I'm talking about or I'm bringing forth by virtue of the accreditation that I have accorded to my institution. For example, NAC. NAC provides you with the accreditation at the institute or the university level.
whereas National Board of Accreditation accords accreditation to a program-specific approach. Okay, so these are, in the Indian context, these are the two accreditation agencies that are widely known. Okay. In order to elaborate my point further, let me first define what is accreditation. So I'm talking something which is over and above quality, right? I started with the approval, then we went on to quality. Now I'm talking about accreditation, and then I'll descend. I'll go down and I'll see how quality is assured using accreditation. So let me first take up the definition of accreditation. A widely followed definition of accreditation is formal recognition of an educational program or institution by an external agency. See, I have underlined this. On the basis of impartial assessment. Again, this is underlined. Assessment of the attainment of specific requirements against well-defined criteria. So these are the three keywords in my definition. First and the foremost, it has to be done by an external agency. If I'm doing an internal accreditation, that may be good enough for a mock accreditation. But an actual accreditation should come from an external agency, an unbiased agency, and an agency which is homogeneous across the institutes, so that the result is also homogeneous. If we have different bodies for accreditations, then obviously the result may not be homogeneous. So it has to be one or two or very few external agencies that are common and are neutral to all the institutions. So external agency has to do this on the basis of impartial assessment. Now, when I say impartial, let me elaborate on two more words: subjective and objective. As educationists or teachers or students, we all have altogether a different notion of being subjective or objective. हम जब कभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज द वन व्हिच हैज गॉट मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड सो फोर्थ. And when we say subjective, it means essay type answers. That is a very narrow concept of objective subjective. Subjective means the result may vary from subject to subject, from person to person, right? And objective means regardless of which person or which subject you take it to, the answer remains the same. If a statement is true, it has to be true for everyone. If it is false, it has to be false for everyone. Fill in the blanks, the answer has to be unique. Multiple choice questions, the answer has to be unique, right? So likewise, the assessment has to be objective and not subjective. You cannot change the rule by changing the face. It has to be a standard set of rules on which you have to carry out the accreditation. And that takes me to the next keyword, well-defined criteria. You have to declare the rules of the game before the game begins. It shouldn't be that you are changing goalposts when the game is already on. In order to be fair to all the participants, you have to set the rules before the game begins. Likewise, the accreditation rules or the criteria have to be very well defined before the accreditation begins, so that everybody can prepare according to it, right? So this is the broad definition of accreditation. So now with this, let me move on to the accreditation scenario in India. Institutional accreditation by National Assessment and Accreditation Council, which is NAAC. It is an autonomous body established by the University Grants Commission in 1994. For technical programs, we have National Board of Accreditation, which is NBA. It carries out diploma level to postgraduate level in engineering, management, architecture, pharmacy, hospitality, and mass communication. And the list may go on. This is a suggestive list.
Now, what is the significance of accreditation? At national level, the students and parents, it is easier for them to select the institutions and programs for admission. If it is accredited, you go for it. If it is not accredited, you may avoid it, simply because an accredited program will invite recognition from all the different governments. It also helps in employers in deciding about the institutions for recruitment of graduates. If the graduates are the product of an accredited institute, it is very easy, you go and hire them. If they are not from the accredited institute, which means that they are not following a certain quality norm, then you better go for evaluating them further if you have to absorb them. It helps institutions to avail the benefits from regulatory bodies and funding agencies, institutions. So that way, if somebody has got the NAC with A++ grade, you all might be aware that the scoring in NAC is on a scale of 4. So if all those institutions who have got 3.5 and above score, they have got complete autonomy, which means they can start the programs, they can enhance the seats, they can devise their own ways of generating revenues. If you go between 3 and 3.5 category, then there are some restrictions. That is called grade 2 autonomy. And below that, there is no autonomy at all. So basically, you are getting enhanced incentives, facilities, fundings if you have got the accreditation at a certain level. It also helps institutions in deciding about transfer of students from other institutions. So if two accredited institutions, they can carry out a credit transfer if they have the exchange facility for their students, right? Because they are at the same level, they are accredited. It will be difficult to do a credit transfer between an accredited institute and an unaccredited institute. So these were the benefits that one accrues from at the national level if the institute is accredited. Now, how about international level? At international level, mobility of students for pursuing higher studies and employment in other countries. If you graduate from an accredited institute or with an accredited program, then you can seamlessly get settled for your higher studies or employment in other signatory countries of that agreement. Now, global mobility, let me emphasize the point that I was trying to make in the previous slide. At the international level, I'm trying to elaborate further by talking about the global mobility. Multinational accords for mutual recognition of accrediting process and thereby recognizing the accreditation. So, for example, Washington Accord, it was carried out in 1989 for engineering degree programs. So all the signatory countries, they agreed to the fact that we will mutually recognize the degrees accredited by the respective governments. So every government will follow a certain standard or the norm, and then whatever degree you accredited, you provide accreditation in your country, we will mutually recognize them. For example, the signatories were USA, UK, New Zealand, Gulf countries. So now an accredited degree from any of these countries will be approved or recognized. उस डिग्री को मान्यता मिल जाएगी हर उस जगह पर जिसने उस पर दस्तखत किए, उस पर साइन किए, हस्ताक्षर किए उस एग्रीमेंट पर. तो ये अकॉर्ड का फायदा है. दिस इज द बेनिफिट ऑफ द अकॉर्ड. Likewise, we had the Sydney Accord in 2001 for engineering diploma or polytechnic programs, Dublin Accord 2002 for engineering technician programs, Seoul Accord 2008 for professional engineers in computing and IT related fields. So these are, again, this is just an example list. There may be so many more accords. In order to emphasize further, let me talk about the Washington Accord in somewhat detail.
This is an accord signed among 6 countries to begin with in 1988, as I said in the previous slide. These were the 6 countries: Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom, and United States. So all of them had agreed. A degree accredited from the Australian government agency will be recognized in Canada, Ireland, New Zealand, UK, US. Similarly, a degree which is accredited by the Accreditation Agency of Canada will be recognized in Australia, Ireland, New Zealand, United Kingdom, and likewise, a degree accredited by the government agency in the United States will be recognized by all the signatory countries, namely Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom. This is how the story began. The purpose was to mutually recognize and accept the qualifications accredited by signatories. The accord at present has 15 full signatories and 5 provisional signatories. So this list has grown, and it may have grown further. This is the last that I'm telling you about. Members of Washington Accord have outcome-based accreditation. ये हम वापस आ रहे हैं अब. इतना हमने accreditation की अपनी importance है, but still I elaborated so much, I emphasized so much simply because it follows outcome-based accreditation. So this is the list of signatories of Washington Accord, right? India has also been added, and there are so many more countries that keep adding to the list. अब accreditation, इसका मतलब ये हुआ accreditation and outcome-based education, they are hand in hand. जिसको हम हिंदी में कहते हैं चोली दामन का साथ है. Accreditation और outcome, both NAAC as well as NBA, both follow outcome-based education system. इसीलिए हम उस पे इतना emphasis दे रहे हैं, इतना जोर दे रहे हैं. Now, what are accreditation models? There is a minimal model. It does not encourage continuous improvement. It basically emphasizes कि आज हम कैसे हैं, and we get the accreditation. It is not futuristic. The evaluation is not done for 5 years or 10 years down the line. आज की डेट में आप कैसे हैं, आपको accreditation मिलेगा या नहीं मिलेगा, that is decided. Then we talk about the input-output model. We not just look at the input, we also look at the output. फिर जो बात आती है वो है आउटकम मॉडल की. You are basically stressing upon the outcome based education. Let me give you an example. Suppose there is this farmer who has got the best field, most fertile piece of land. He's got the best seeds. He has got the best fertilizers. He has got ample water. But the crop, the yield is not up to the mark. This means there is something fundamentally wrong with this cultivation process, with this farming process. So you have to dwell deep into analyzing what and where has gone wrong. तो किसी भी किसान के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज होती है पैदावार. पैदावार अच्छी आ रही है, nothing else matters, right? So this is outcome model. How is the outcome of my education system? A farmer may have a reasonably good fertile piece of land, reasonably good seeds, reasonably good fertilizers, just sufficient water, but he is having a very good crop. He is satisfied with the crop. Then we will say that his cultivation process is all right. So in the end, what matters is the yield, the crop, the end result. So that is why the outcome-based model. Again, let me go on to the definition of outcome-based education. Starting with a clear picture of what is important for students to be able to do. Then organizing the curriculum, delivery, and assessment to make sure learning happens in that direction. अभी हमारे Olympic Games खत्म हुए. Thankfully, for the first time, we have won so many medals. Although it is very low, but still, it is an encouraging sign. अब सारे games में क्या होता है? High jump है. The athlete sets the bar. कि मैं इतना कूदूंगा या कूदूंगी. And then they try to assert to cross that bar. Right?
या वेट लिफ्टिंग में द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक्स वी वन अ सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग एंड अ लेडी डिड इट, व्हिच इज अगेन अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। क्या है उसके अंदर? वेट्स पहले आपको सेट करने हैं और आप वेट इंक्रीज करते जाते हैं, उठा लेते हैं तो और बढ़ाते हैं, उठा लेते हैं तो और बढ़ाते हैं। सो बेसिकली यू आर सेटिंग द टारगेट फॉर योरसेल्फ एंड देन असर्टिंग, वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव दैट टारगेट। ऐसे ही एजुकेशन में भी हम पहले टारगेट सेट करते हैं। कोई अच्छी बुक उठाकर देखिए तो बुक के शुरू में, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द बुक, यू हैव गॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी चैप्टर डिफाइंड। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। अब पढ़ने वाला शुरू में समझ जाता है कि भाई ये चीजें मुझे एक्सपेक्ट करनी है इस किताब के अंदर। आई एम एक्सपेक्टिंग दीज पॉइंट्स इन माई बुक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फिर वो पढ़ता है। टुवर्ड्स द एंड वी हैव द कंक्लूजन अगेन, राइट? जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव एन इंपॉर्टेंट फोन कॉल। हाँ जाहिर, हाँ जमा कर दो मैं। क्यों? अच्छा चलो तुम ले आओ पर्चा लेके ऑफिस आ जाओ, ठीक है मैं बताता हूँ। चलो ओके ठीक। राइट, sorry for the interruption. So likewise in education also you set the bar and make it known to everyone. ओपन में लाइए कि मैंने इतनी बार सेट की हुई है, इतना वेट सेट किया हुआ है। एवरीबडी शुड नो, ऑल द स्टेक होल्डर्स शुड नो। इसी तरह स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स, the employers, the alumni, all the stakeholders of an institution should know that this is the bar you have set for your educational institution. फिर उसके बाद अब आप ट्राई करेंगे organizing the curriculum, delivery and assessment to make sure learning happens. थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूंगा यहाँ पर और एक यूजफुल पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। आउटकम बेस्ड एजुकेशन से थोड़ा हट कर है, बट इट इज वेरी यूजफुल नेवरदलेस। Most of you must be fresh PhDs or PhD aspirants. सबसे क्रूशियल स्टेप किसी भी PhD प्रोसेस में प्रॉब्लम चॉइस का होता है। क्या प्रॉब्लम आप चूज कर रहे हैं अपने लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आपको ये देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम आप चूज कर रहे हैं अपने लिए। तो प्रॉब्लम कैसे डिसाइड की जाए, हाउ डू यू डिसाइड अपॉन द प्रॉब्लम? दो तरीके होते हैं। हमारी टेंडेंसी ये है कि वी ट्राई टू चूज एन ईजियर प्रॉब्लम। ह्यूमन टेंडेंसी है, हम चाहते हैं कि ईजियर प्रॉब्लम अपने लिए सेट करें ताकि आसानी से काम हो जाए। फ्लिप साइड क्या होती है इसकी, प्रॉब्लम क्या होती है? विद एन ईजियर प्रॉब्लम माई ईच एंड एवरी स्टेप विल बी वॉच्ड। अगर मुझसे कहा गया कि तुम 2 फीट का हर्डल क्रॉस करोगे या 10 फीट का हर्डल, ह्यूमन टेंडेंसी में कहूंगा 2 फीट का हर्डल। अब मेरा हर स्टेप देखा जाएगा, मेरा स्टार्ट कैसा था, मेरा रिदम कैसा था, मेरा पॉइज कैसा था, मेरा टेक ऑफ कैसा था, मेरी लैंडिंग कैसी थी, हर चीज देखी जाएगी क्योंकि टारगेट इज टू ट्रिवियल। दूसरा एक्सट्रीम क्या है? चूज अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम। आपने कहा मुझे 10 फीट हर्डल क्रॉस करना है। अब 10 फीट हर्डल के साथ कोई आपके स्टेप्स नहीं देखेगा। अब सबकी नजरें बार के ऊपर होंगी कि वो आपने क्रॉस की कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप बार क्रॉस नहीं कर सके, आखिरी वक्त पर आपका अंगूठा टच हो गया, आपका हाथ टच हो गया, बार गिर गई, बट स्टिल यू गेट द अपलॉज बिकॉज यू हैव सेट अ हाई बार फॉर योरसेल्फ, राइट? सो व्हेन चूजिंग अ प्रॉब्लम फॉर PhD it is better to choose a challenging problem, so you will get away with any reasonable solution. With an easy problem, your solution has to be perfect in all the senses, right? हाँ जाहिर है ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप 100 फीट का हर्डल सेट कर लीजिए कि क्रॉस ही ना कर पाए कभी, ये पॉइंट नहीं कह रहा हूं मैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये कि एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम हमको अपने लिए चूज करनी चाहिए। यही बात आउटकम बेस्ड एजुकेशन में कि एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम अपने लिए सेट कीजिए कि मैं बच्चों को ये पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी इस कोर्स के अंदर। And then organize your curriculum, your delivery and assessment. 3 चीजें हैं उस बार को अचीव करने के लिए, उस आउटकम बेस्ड एजुकेशन बार को अचीव करने के लिए। 3 things. You set the curriculum accordingly,
you set the delivery of contents accordingly, and you do the assessment process so that learning happens for sure. ये डायग्राम है आउटकम बेस्ड एजुकेशन की. आउटकम बेस्ड एजुकेशन इज एट द टॉप. दैट लीड्स टू आउटकम बेस्ड curriculum, that leads to outcome based learning and teaching, and that leads to outcome based assessment. Outcome based education, what the student should be able to do, how to make the students achieve the outcome, how to measure what the student has achieved. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एंड में ये मेजर नहीं कर पाए कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन कितना अटेन हुआ, तो इसका मतलब यू आर नॉट मेजरिंग, यू आर नॉट कंट्रोलिंग. अब आप आउटकम बेस्ड एजुकेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको मेजर भी करें कि अटेनमेंट ऑफ, असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन. Outcome based education, if it is to be described in a nutshell, it can be described using this triangle. There is this vision at the top. In order to reach that vision, you have smaller mission statements. In order to reach that mission, you have the program educational objectives. In order to reach that program educational objectives, you have program outcomes. सब चीज मैं डिस्क्राइब करूंगा. और इन ऑर्डर टू रीच दैट प्रोग्राम आउटकम्स, यू हैव टू हैव द कोर्स आउटकम. ठीक है. अब डिजाइन तो इस तरह चलेगा, ऊपर से नीचे चलेगा. सबसे पहले आप विजन ऑफ द इंस्टीट्यूशन सेट करेंगे, विजन ऑफ द डिपार्टमेंट सेट करेंगे. फिर उस विजन को मीट करने के लिए आपके स्मॉलर मिशन स्टेटमेंट्स होंगे. फिर ये दो चीजें हैं, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्राम आउटकम. मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा डिफरेंस, बट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया हियर. ऑब्जेक्टिव इज अ लॉन्ग टर्म थिंग. 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में क्या होना चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्टिव. आउटकम इज इमीडिएट. आज की डेट में क्या मुझे आउटकम मिल रहा है. सो ऑब्जेक्टिव इज फ्यूचरिस्टिक, वेयर इज आउटकम इज प्रेजेंट. राइट. These program outcomes are aligned with graduate attributes, the quality that a graduate of any discipline should have, right? So likewise, you will have the program outcome for the program. अब जैसे BA हिस्ट्री का अपना एक प्रोग्राम आउटकम होगा, उसका अपना प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होगा. फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसमें BA भी चल रहा है, MA भी चल रहा है, और मान लीजिए एमफिल भी चल रहा है. अच्छा, BA हिस्ट्री भी चल रहा है और BA आर्कियोलॉजी भी चल रहा है फॉर एग्जांपल. तो BA हिस्ट्री के प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे. BA आर्कियोलॉजी के प्रोग्राम आउटकम वो होगा जो ग्रेजुएट ऑफ BA आर्कियोलॉजी विल हैव एट द टाइम ऑफ देयर ग्रेजुएशन. Or BA archaeology program educational objectives will be the qualities that a graduate of BA archaeology will have 6 years, 7 years down the line in a professional field. कैसा self develop करेगा अपने आप को. तो point I'm trying to emphasize is that program outcomes and program educational objectives are different and they are program specific, right? फिर ये सारे BA आर्कियोलॉजी का PO और PEO, शॉर्ट में हम इसको प्रोग्राम आउटकम को PO और PEO प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दैट शुड कंट्रीब्यूट टू द मिशन ऑफ द डिपार्टमेंट. BA आर्कियोलॉजी PO शुड कंट्रीब्यूट टू द मिशन ऑफ द डिपार्टमेंट. MA हिस्ट्री PO should contribute to the mission of the department, and that mission should take you to the vision of the department or vision of the university, right? अच्छा, अब ये PO कैसे मिलेगा? ये मिलेगा हर कोर्स में. जो BA हिस्ट्री का हर कोर्स है, हर सेमेस्टर में 6 कोर्स हैं, 8 कोर्स हैं, 7 कोर्स हैं, हर कोर्स के अपने कोर्स आउटकम होंगे. जैसे जैसे स्टूडेंट कोर्सेज पास करता रहेगा, उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स आते रहेंगे. अब BA हिस्ट्री किया, मेडिवल हिस्ट्री का कोर्स उसने कर लिया, तो इसका मतलब मेडिवल हिस्ट्री के कोर्स आउटकम उसके अंदर आ गए. फिर एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स उसने किया, तो एंशिएंट हिस्ट्री के आउटकम्स के अंदर आ गए.
उसने मॉडर्न हिस्ट्री का किया तो मॉडर्न हिस्ट्री के आ गए, उसने मान लीजिए एशियन हिस्ट्री का किया तो एशियन हिस्ट्री के कोर्स आउटकम आ गए। तो ये सारे कोर्स आउटकम वो अकोमुलेट करता रहेगा जैसे जैसे कोर्सेज पास करता रहेगा। जब वो ग्रेजुएट करेगा यानी सारे कोर्सेज पास कर लेगा तो उसके अंदर वो सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे विच आर दी प्रोग्राम आउटकम ऑफ बीए हिस्ट्री। तो डिजाइन इस तरह होता है और असेसमेंट इस तरह होता है। डिजाइन तो हम इस तरह करेंगे, विजन पहले फिर मिशन सो ऑन। असेसमेंट की बात आएगी तो सबसे पहले आप अटेनमेंट ऑफ कोर्स आउटकम को असेस करेंगे। हर कोर्स के खत्म पर ये देखेंगे, कैसे देखेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। ये देखेंगे कि इस कोर्स के कोर्स आउटकम अटेन हो गए कि नहीं, कितना अटेन हुए, और फिर ये सारे मैप होंगे प्रोग्राम आउटकम्स में। तो जैसे जैसे कोर्सेज के आउटकम अटेन होते रहेंगे वो मैपिंग के मुताबिक, मैपिंग के अकॉर्डिंग प्रोग्राम आउटकम्स के अटेनमेंट को सिग्निफाई करता रहेगा। फिर वही प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अटेनमेंट को, फिर वो मिशन के अटेनमेंट को, फिर वो विजन के अटेनमेंट को असेस करेगा। तो असेसमेंट गोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप वेयरएज डिजाइन गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, इसको आप लोग अपने दिमाग में रखें, नोट कर लें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन। अब मैं एक एक करके इन चीजों को डिस्कस करूंगा। व्हाट इज विजन, बिकॉज दे आर ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन। अब विजन एंड मिशन, क्या फर्क है दोनों में? अगेन आई विल गिव यू अ रियलिस्टिक एग्जांपल। When we were students at the engineering college of the Aligarh Muslim University, we have a senior professor of mechanical engineering who is retired now, of course. He had an old Fiat car. Those were the times when only Fiat and Ambassador were the two Indian cars. इसके अलावा जो भी होती तो वो imported car होती थी। तो या तो Fiat होती थी लोगों के पास या Ambassador होती थी। तो उनके पास एक फिएट कार थी पुरानी, और ऐसा नहीं था हर 2 साल 5 साल बाद लोग कार बदलते थे। वो तो एक बार कार खरीद ली तो अब वो जिंदगी भर के लिए वो कार होती थी। दोज वर द टाइम्स, राइट। तो एट द बैक विंडशील्ड ऑफ द कार, जो बैक ग्लास होता है कार का, उस पर एक स्टिकर लगा हुआ था और उस स्टिकर पे लिखा हुआ था, ओल्ड फिएट कार के स्टिकर पर लिखा हुआ था, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी अ रोल्स रॉयस। Sounds funny. एक ओल्ड फिएट कार पे लिखा हुआ व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी अ रोल्स रॉयस, लेकिन दैट कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ द विजन ऑफ दैट कार। व्हाट डू यू वांट टू बिकम 10 years from now, 20 years from now? That is vision. How do you want your institution or the department to grow in next 50 years? That is the vision for your department or for your institute. So with this example, I'm sure that you will be able to understand what vision is. फिर इस विजन को मीट करने के लिए you have shorter goals and they are called mission statements. हम लोग कंप्यूटर साइंस में एग्जाम्पल देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर पढ़ाते हैं, उसमें एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग होती है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर साइंस नहीं भी आती है, still you can make out from the very name of it. Short term scheduling is mission. Long term scheduling is vision. Again, another example I can give you from cricket, the sport. Suppose it is a vision of a player that he wants to become the number 1 player. या किसी का विजन है Wisden cricketer of the year मुझे होना है। I have to be Wisden cricketer of the year for 3 consecutive years. Right? ये vision है। Now, in order to meet that vision, he will set shorter mission goals. I have to score so many runs in this series. I have to take so many wickets. I have to hold so many catches. Series by series, match by match, he will have those mission statements accomplished. Mission accomplished. इस सीरीज में मुझे 1000 रन बनाने थे, मैंने बना लिए, mission accomplished. Right? But mission is not the end of it. You have the longer term vision in front of you, and those mission statements are there to meet that vision. How do you set the vision and mission? What is the process? Articulation of vision and mission process. You have to have the institute vision and mission in place.
Your department vision and department mission should rhyme with that, should match with that, should be compatible with that. मैं इंस्टीट्यूट विजन मिशन की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि दैट इज अ हायर ऑर्डर एक्सप्लेनेशन. अगर हम बडिंग वाइस चांसलर्स या बडिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तब हम वहां पर ये डिस्कस करते हैं. अभी तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि यू आर ऑल यंग फैकल्टी मेंबर्स. तो इंस्टीट्यूट विजन मिशन आपको मिला हुआ है और आपको डिपार्टमेंट का विजन सेट करना है. तो पहली चीज आपको देखनी होगी कि योर डिपार्टमेंट विजन एंड मिशन शुड राइम विद द इंस्टीट्यूट विजन एंड मिशन. दैट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल. उसके अलावा अब आप स्टेक होल्डर्स से आप इनपुट्स लेंगे, फैकल्टी से पूछेंगे, इंडस्ट्री से पूछेंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे. और ये लिस्ट भी एग्जॉस्टिव नहीं है, आप अलुमनाई से भी पूछ सकते हैं कि आप लोग इस डिपार्टमेंट से पढ़े हैं, डिपार्टमेंट का विजन क्या होना चाहिए, मिशन क्या होना चाहिए. Alumni are a very important stakeholder. That is why we will have a complete lecture tomorrow the same time on managing alumni relations. क्योंकि alumni कल मैं और emphasize करूंगा, alumni they are students and experienced people at the same time. जब alma mater की बात आती है तो वो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का. That experience is very very important, right? तो you carry the opinion of all the stakeholders. Further आप पेरेंट्स का भी ले सकते हैं, सोसाइटी एट लार्ज, एवरीबॉडी, राइट. फिर उसके बाद अब आप देखेंगे डेटा ऑन फ्यूचर. आजकल हम लोग बहुत बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की, डेटा इंजीनियरिंग की, डेटा साइंस की. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डेटा. पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज बेस्ड ऑन डेटा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सेल्फ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, राइट. डिसाइड कर सकें हम, दैट इज इंटेलिजेंस. टेकिंग गुड डिसीजंस इज इंटेलिजेंस. अगर कंप्यूटर अच्छे डिसीजंस ले सके तो हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई. कहाँ से डिसीजन लेते हैं हम डेटा अपने दिमाग में पिछला, आज मुझे अम्ब्रेला लेकर डिपार्टमेंट जाना है कि नहीं, डिसीजन लेना है मुझको, अम्ब्रेला ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं. ठीक है, अब आप सोचेंगे पिछले साल इस वक्त में बारिश हो रही थी नहीं हो रही थी, मैं गया था तो कहीं भीग तो नहीं गया था. All those data that are stored in your mind, you use them in order to make a decision. So data on future is very important. Futuristic data. आज का डेटा कैसा एक्सट्रापोलेट करेगा फ्यूचर में, जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड कैसे कंटिन्यू करेगा फ्यूचर में. Then you look at professional bodies. जो भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं in your area, you look at them. And you look at their guiding principles or guidelines. And you look at parents. Parents में भी बहुत से ज़ाहिर सारे पेरेंट्स एक्सपीरियंस होंगे. नंबर 1 एक्सपीरियंस, और अगर एजुकेशन विद एक्सपीरियंस है सो दैट इज इवन मोर वर्दी, राइट. बहुत से पेरेंट्स विदाउट एजुकेशन आर आल्सो वर्दी. आई एम नॉट रूलिंग दैट आउट, बट विद एजुकेशन दैट बिकम्स इवन मोर वर्दी, राइट. तो ये है आर्टिकुलेशन ऑफ विजन एंड मिशन. तो अब आप इन सब का करके फिर आप रिव्यू करेंगे, सेवरल इटरेशंस लेंगे. एक बार में विजन मिशन नहीं सेट होगा, यू विल हैव टू गो सेवरल इटरेशंस. आप करने के बाद फिर वापस जाएंगे फैकल्टी, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, डेटा ऑन फ्यूचर, प्रोफेशनल बॉडीज, पेरेंट्स, और देखेंगे कुछ आप चेंजेस करना है, क्या करना होगा तो चेंजेस कीजिए, फिर रिव्यू कीजिए. फाइनली जब आप एक पूरा लूप पूरा कर लें जिसमें रिव्यू की जरूरत ना पड़े, तब यह आपका विजन मिशन होगा. और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, विजन एंड मिशन दे आर नॉट कार्व्ड ऑन स्टोन. पत्थर में नहीं खोदे जाते हैं. आप उसकी एक्सपायरी रखिए. मैंने विजन बनाया है, ये 20 साल का विजन है. आज की डेट में 20 साल बाद 10 अगस्त 2041 को हम फिर बैठेंगे, 2041 को हम फिर बैठेंगे और विजन को रिवाइव करेंगे, रिव्यू करेंगे. मिशन 10 साल का एक्सपायरी है. 10th August 2031 we will sit again and revise our mission. रिवाइज का मतलब ये नहीं कि आप नेसेसरली उसको चेंज ही करें. आप बैठिए, देखिए क्या चेंज रिक्वायर्ड है. नो चेंज रिक्वायर्ड, सेट द एक्सपायरी फॉर अनदर 10 or 20 years. बट इफ एक्सपायरी इज रिक्वायर्ड, या और इवन आप कह दीजिए कि भाई अगले 5 साल तक ये वैलिड रहेगा, तो 5 साल बाद फिर बैठिएगा. और जब कभी चेंज चाहिए तो चेंज के लिए फिर आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है. मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं.
अब जैसे विजन एंड मिशन ऑफ आवर इंजीनियरिंग कॉलेज, विजन ये है, लेकिन विजन आया कहाँ से? In line with the vision of our founder, Sir Syed Ahmad Khan, the Zakir Hussain College of Engineering and Technology has always stood for peaceful coexistence, academic excellence and scientific temper. तो हमको अपने कॉलेज का विजन फाउंडर के विजन से राइम कराना है, मैच कराना है। तो हमने बनाया इस ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके हमने विजन बनाया टू बिकम एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च with standards at par with national and international institutes of repute and to serve as quality human resource provider to the society and industry. ये हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का विजन है। फिर इसको मीट करने के लिए हमने मिशन स्टेटमेंट्स टू ऑफर स्टेट ऑफ द आर्ट यूजी पीजी एंड पोस्ट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स, टू मेक पॉलिसीज एंड एटमॉस्फेयर टू अट्रैक्ट एंड रिटेन बेस्ट फैकल्टी, क्योंकि ये सारी चीजें बेस्ट फैकल्टी दैट विल लीड टू विजन। Good UG, PG doctoral programs will lead to the attainment of our vision. To create an ambience in which new ideas and cutting-edge research flourish through effective curriculum and infrastructure so as to produce the leaders and innovators of tomorrow. To produce ethically strong and morally elevated human resource to serve mankind. To undertake collaborative projects and consultancy for long-term interaction with the academia and industry. To be among top 10 engineering institutes of India. ये हमारे मिशन स्टेटमेंट्स हैं। विजन मिशन के बाद वही ट्रायंगल जो पहले था, विजन मिशन के बाद क्या आता है? पीईओ और पीओ आते हैं। इसका फर्क समझिए। पीईओ, as I pointed out at that point of time, this is coming from the matured graduates. ठीक है। पीओ तो वो एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्वालिटीज हैं जो एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब जो आज का ग्रेजुएट है बीए हिस्ट्री, उसी की एग्जांपल हम ले रहे थे, तो लेट अस कंटिन्यू। बीए हिस्ट्री वाला उसने एमए कर लिया, बीएड कर लिया, किसी स्कूल में पढ़ाने लगा, तो हमने तो उसको बीए तक का पढ़ाया था, उसके बाद उसने कैसा सीखा, या कोई पीएचडी करके गया यहाँ से और पढ़ा रहा है, या इंजीनियरिंग का पीएचडी है, किसी इंडस्ट्री में है, मैनेजरियल पोजीशन पर पहुंच गया, तो अब हमने उसको मैनेजर बनाना तो नहीं सिखाया था, हमने उसको पढ़ाना तो नहीं सिखाया था, उसने सेल्फ डेवलप कैसे किया अपने आप को। दिस इज पीईओ, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो इट मे बी 4, 5 years और इवन मोर डाउन द टाइमलाइन। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फ्रूट से। मैंगो इज राइप, प्रोग्राम आउटकम। हाउ दैट राइप मैंगो टेस्ट, हाउ डज इट स्मेल, हाउ डज इट अपीयर, ये पीईओ है। आम पक गया, पीओ, प्रोग्राम आउटकम अटेन्ड। लेकिन कैसा पका, उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है कि नहीं, उसकी स्मेल कैसी है, देखने में कैसा लग रहा है ना। ऑल दीज थिंग्स आर प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा जो बच्चा आज की डेट में ग्रेजुएट कर गया, कोर्सेज पास कर गया, प्रोग्राम आउटकम हो गया। लेकिन अब ये बच्चा कितना अच्छा टीचर बनता है, मैनेजर बनता है, पेरेंट बनता है, एम्प्लॉयर बनता है, वो सारे प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर इसका भी तरीका है डिफाइनिंग ऑफ पीईओज। अब क्या है, पीईओ शुड राइम विद द इंस्टीट्यूट विजन एंड मिशन, डिपार्टमेंट विजन एंड मिशन, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, सब चीजें होंगी। फिर फैकल्टी स्टूडेंट डेटा ऑन फ्यूचर, अलुमनाई, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल बॉडीज, सबका डेटा लिया, कलेक्ट किया, व्यूज सबके कलेक्ट किए और उसको राइम कराया डिपार्टमेंट विजन एंड मिशन से। कौन कलेक्ट करेगा? प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर विल कलेक्ट। फिर ये व्यूज समराइज किए जाएंगे, प्रोग्राम असेसमेंट कमिटी विल समराइज दीज व्यूज। कलेक्शन के लिए तो एक आदमी काफी है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, लेकिन समराइजेशन के लिए यू हैव टू हैव अ कमिटी सो दैट नो एस्पेक्ट इज लेफ्ट आउट। देन यू प्रेजेंट दीज व्यूज बिफोर द डिपार्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड। वहां पर वो एक्सेप्ट होगा या मॉडिफिकेशन के लिए होगा। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आप वापस जाएंगे, वापस जाकर आप फिर फैकल्टी स्टूडेंट डेटा ऑन फ्यूचर, अलुमनाई, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल बॉडीज, सब पे वो डेटा प्रेजेंट करेंगे। फिर उनके व्यूज इन द लाइट ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ पीईओ विल बी कलेक्टेड, समराइज्ड एंड प्रेजेंटेड बिफोर द डिपार्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड। फाइनली जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, वो आपका प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होगा। उस प्रोग्राम का बीए हिस्ट्री का पीईओ अलग होगा, बीए आर्कियोलॉजी का पीईओ अलग होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है।
अब जैसे समरी ऑफ ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स में आपको ब्रीफ में बता दूं, जैसे इंजीनियरिंग के होते हैं, इंजीनियरिंग नॉलेज, प्रॉब्लम एनालिसिस, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस, investigation of complex problems, modern tool usage, engineer and society, environment and sustainability, ethics, individual and teamwork, communication, lifelong learning, project management and finance. तो ये 12 एट्रीब्यूट्स हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के होते हैं। आगे इन्हीं का एक्सप्लेनेशन है, लेट मी नॉट गो इनटू इट। इंजीनियरिंग नॉलेज से क्या मतलब है, प्रॉब्लम एनालिसिस से क्या मतलब है, फिर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, मॉडर्न टूल यूसेज, इंजीनियर एंड सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इंजीनियर्स के लिए। हम इंजीनियर्स यू नो वी आर वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक हमने बनाई, पूरा एक हैवक उसकी वजह से, और कितनी चीजें हमने बना दी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है ना। इंडस्ट्रियल वेस्ट कितना सब निकल रहा है, वो हमारी वजह से निकल रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर सेंसिटिव टू आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स, विदाउट मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज एन इंजीनियर विल बी अ डिजास्टर, वी ऑल नो दैट। फिर इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, एक आदमी अकेले तो बहुत अच्छा काम कर सकता है, ग्रुप में नहीं कर पाता, तो ही और शी इज ऑल्सो अ डिजास्टर। तो इसलिए हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आइडियाज आर वेरी गुड, बट इफ यू नॉट एबल टू कम्युनिकेट देम इफेक्टिवली, वो सब हमारे अंदर चले रह जाएंगे, हमारे साथ दफन हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लर्निंग हैज नेवर एन एंड। ऐसा नहीं है हम ग्रेजुएट कर गए तो खत्म हो गया। ग्रेजुएशन इज द बिगिनिंग एंड नॉट द एंड। एक आदमी एमबीबीएस करके ये कहे कि दिस इज द एंड ऑफ इट, कहा जाएगा नो, दिस इज द बिगिनिंग। कोई बीटेक करके कहे एंड ऑफ इट, कहा जाएगा नो, अभी तक तो आप सीख रहे थे, नाउ योर एक्चुअल प्रैक्टिस और एक्चुअल लर्निंग विल स्टार्ट। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसेस नहीं होंगे तो कोई चीज भी सस्टेनेबल नहीं होगी, है ना। चलिए, तो ये ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हो गए। अब पीईओ कैसे डिफाइन होगा, बहुत सिमिलर है पीईओ से। पीओ, इट शुड राइम विद इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट विजन एंड मिशन, एंड इट शुड आल्सो राइम विद पीईओ नाउ, क्योंकि पीईओ से ऊपर था। अब पीईओ और पीओ में अगर वो नहीं होगा, राइमिंग नहीं होगी, तो फिर वी आर फॉलिंग अपार्ट। ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, प्रोफेशनल बॉडीज, एलुमनाई, इंडस्ट्री, डेटा ऑन फ्यूचर स्टूडेंट फैकल्टी, कलेक्ट व्यूज, समराइज, एक्सेप्ट, take several iterations, and finally these will be the defined POs. क्विकली इसलिए कर लिया क्योंकि सिमिलर है पीईओ का, बस सिर्फ ये देखना है कि पीईओ से ये मैच करे, पीईओ जो है विजन मिशन से मैच करे। फिर एक और नया है पीएसओ, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो पीओ में तो 1-to-1 अलाइनमेंट है ग्रेजुएट एट्रीब्यूट से, फिर आप प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स कुछ रख सकते हैं। जैसे बीए हिस्ट्री में, अब आपका हिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, मान लीजिए एंशंट हिस्ट्री में, तो आप 1-2 प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम रखेंगे कि भाई अशोका पीरियड, ठीक है, उसको आप कहेंगे कि ये एक प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम है, या इस तरह का कोई भी आप डिफाइन करें, है ना। तो या आप मान लीजिए प्री हिस्टोरिक एज, जहाँ हिस्ट्री रिकॉर्डेड नहीं है, उसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो दे आर लेसर इन नंबर एंड दे आर स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक टू अ प्रोग्राम। फिर उसके बाद बात आती है आखिरी पड़ाव हमारा जो है कोर्स आउटकम का। इट हैज टू बी स्टूडेंट फोकस्ड, नॉट प्रोफेसर फोकस्ड। अपने हिसाब से मत बनाइए कोर्स आउटकम, स्टूडेंट के हिसाब से बनाइए, है ना। अपने हिसाब से बनाएंगे तो आप 2 फीट हर्डल सेट करके रह जाएंगे। स्टूडेंट के हिसाब से कि वो सीखे, तब आप 10 फीट हर्डल बनाएंगे और फिर अपने डिलीवरी और असेसमेंट को आप बढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है। हेलो, आप ही लेक्चर ले रहा हूँ, 10:30 पे फ्री होगा, फिर बात करते हैं। So alignment between course, program and institutional levels. Course outcomes need to reflect both the objectives and outcomes. वही बात है, PEO और PEO से मैच करना चाहिए, और it should focus on abilities central to the discipline. अब BA हिस्ट्री की बात की है तो it should be central to the history. अब कोर्स आउटकम है, मान लीजिए मेडिवल का, तो मेडिवल के कोर्स आउटकम होने चाहिए, उसमें आप एंशिएंट के नहीं डाल सकते हैं कोर्स आउटकम,
या इधर उधर वेवर मत कीजिए। मैंने पीएचडी एंशिएंट हिस्ट्री में की है, तो मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाते वक्त भी एंशिएंट खींच कर लिया हूं, दैट इज नॉट फेयर, राइट? It should focus on aspects of learning that will endure. Students should be able to endure the test of time, test of society as a course outcomes हो। They are limited to manageable number, बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ा देने कि आप उसको अटेन ही नहीं कर पाए, उनका काउंट ही नहीं रख पाए। यूजुअली होता है जहाँ यूनिट बेस्ड कोर्स होता है, वहां एक यूनिट का एक कोर्स आउटकम रख लेते हैं। 4 यूनिट से 4 कोर्स आउटकम, 5 यूनिट है 5 कोर्स आउटकम, ताकि आप उसको प्रॉपरली मैनेज रख सकें। और इट शुड बी स्पेसिफिक एनफ टू बी मेजरेबल, बहुत वेग नहीं रखना है, वेग नहीं बनाना है, ऐसा हो जो मेजर हो सके। तो ये बहुत फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है ओबीई में, क्योंकि कोर्स आउटकम से ही अब असेसमेंट शुरू होगा। यहां पर थोड़ा सा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करनी पड़ेगी। बेंजामिन ब्लूम थे 1913 to 1999. He looked on learning as a process. We build upon our formal learning to develop more complex levels of understanding. He carried out research in the development of classification of levels of thinking behaviors in the process of learning. PhD University of Chicago in 1942. चलिए आगे चलते हैं बहुत ज़्यादा। अब this is a very useful aid for learning for writing learning process. ये देखिए आप, knowledge सबसे पहला स्टेप, बेसिक स्टेप है नॉलेज। फिर कॉम्प्रीहेंशन, उस नॉलेज को समझना, कॉम्प्रीहेंड करना, फिर अप्लाई करना, फिर एनालिसिस करना, फिर सिंथेसिस करना, फिर इवैल्यूएशन करना। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 6 लेवल्स, है ना। नॉलेज सिर्फ आपने बता दिया, बच्चे ने रट लिया, बात खत्म हो गई, नहीं, सिर्फ रटना नहीं है, उसको समझना भी, राइट, कॉम्प्रीहेंशन। फिर सिर्फ समझना नहीं है, उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए, आप अप्लाई कर सके रियल लाइफ में। फिर एनालिसिस और सिंथेसिस में बहुत सटल डिफरेंस है। देखिए एनालिसिस में अगर आपको सिस्टम पता है, इनपुट पता है और आउटपुट निकालना है, वो एनालिसिस है। अगर आपको इनपुट और आउटपुट पता है, सिस्टम पता नहीं है, तो वो सिंथेसिस है। सो सिंथेसिस इज मोर चैलेंजिंग, क्योंकि आपको इसमें सिस्टम डिजाइन करना है। यू गॉट द डिफरेंस। एनालिसिस में इनपुट सिस्टम दोनों दिए हुए हैं, आपको सिर्फ आउटपुट निकालना है, उसको एनालिसिस कहते हैं। सिंथेसिस, you know the input, you know the desired output, you have to design a system for the desired output given the inputs. वो synthesis है which is more challenging. फिर evaluate करना आना चाहिए, वही बात है, evaluate नहीं करेंगे, what you can't measure, you can't control. हमारी नॉलेज को मेजर करना है, कॉम्प्रिहेंशन को मेजर, एप्लीकेशन को मेजर, एनालिसिस को मेजर, सिंथेसिस को मेजर, हाउ गुड अ सिस्टम यू हैव डिजाइन। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। फिर ये रिविजिट हुआ, एंडरसन एंड कारोथवाल ने किया। नॉलेज टू रिमेंबर, कॉम्प्रिहेंड टू अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन टू अप्लाई, एनालिसिस टू एनालाइज, सिंथेसिस टू इवैल्यूएट एंड इवैल्यूएशन टू क्रिएट। इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? ताकि आप क्रिएट कर सकें न्यू नॉलेज एस्पेक्ट्स। सो एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, दे आर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये बात निकल कर आई। अब देखिए ये ओबीई के स्टेप्स हैं, आउटकम बेस्ड एजुकेशन के ये स्टेप्स हैं। डिफाइन आउटकम्स, सबसे पहले आउटकम्स से मतलब अब सब चीज हो गई, कोर्स आउटकम, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन, डिफाइन देम। देन डिजाइन द करिकुलम अकॉर्डिंग टू दैट, डिलीवर इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू दैट, डॉक्यूमेंट योर रिजल्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिटरमिन एडवांसमेंट, है ना। अगर ये डिटरमिन एडवांसमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये सारा बेकार है, फिर इट्स ऑल यूजलेस इफ यू आर नॉट यूजिंग देम फॉर डिटरमिनिंग द एडवांसमेंट्स। तो ये आपके आउटकम बेस्ड एजुकेशन के स्टेप्स हैं। अब देखिए एक मैं आपको वो दे रहा हूँ फिगर, थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान दीजिए तो आप इसको समझ जाएंगे कैसे इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है, क्योंकि दिस इज सेंट्रल। इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो आप फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। व्हाट यू कांट मेजर यू कांट कंट्रोल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब जैसे कोई एक प्रोग्राम लिया हमने, यहाँ पे बीई इन ट्रिपल ई ले लिया, आप बीए इन हिस्ट्री ले सकते हैं, आप बीएससी इन केमिस्ट्री ले सकते हैं, आप एमएससी इन मैथमेटिक्स ले सकते हैं, जो भी है ना। अब ये प्रोग्राम का एक डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ इवैल्यूएशन होगा जो कि उस कोर्स का रिजल्ट होगा।
अब बीए मैथमेटिक्स में एक कोर्स है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में कितने बच्चे पास हुए, बहुत सिंपल करके बता रहा हूं मैं आपको, कितने बच्चे पास हुए। आपने कहा साहब 70% बच्चे पास हुए, तो आपका डायरेक्ट कंपोनेंट आ गया 0.7। फिर आपने उन्हीं बच्चों को कोर्स आउटकम का फीडबैक लिया कि बच्चों तुम क्या समझते हो, तुमने इस कोर्स आउटकम को कितना अचीव किया। बच्चे खुद बताएंगे कि साहब हमने कोर्स आउटकम 1 तो 80% अचीव कर लिया, लेकिन 2 में हम 70% रह गए, 3 फिर हमने 85% कर लिया, कोर्स आउटकम 4 हमारा जो है वो 65% ही रह गया। आप एवरेज कर लीजिए, पूरे को एवरेज कर लीजिए, वो आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ सीओ अटेनमेंट। इन दोनों को मिला दीजिए आप, इसीलिए देखिए यहां पर प्लस प्लस साइन है। मान लीजिए 70-30 के रेशियो में मिलाया आपने, 70% ऑफ रिजल्ट, 30% ऑफ फीडबैक वेटेज। अब ये क्या आ गया, सीओ का अटेनमेंट आ गया, ठीक है। अब ये सीओ का अटेनमेंट डायरेक्ट कंपोनेंट बन जाएगा पीओ के अटेनमेंट के लिए, और इसमें फिर फीडबैक आएगा अलुमनाई का। और एग्जिट सर्वे, एग्जिट सर्वे से मतलब जब बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है प्रोग्राम से, बीए हिस्ट्री खत्म हो गया उसका, या एमएससी मैथमेटिक्स खत्म हो गया उसका, तब आप उससे फीडबैक लेंगे कि तुम क्या समझते हो, तुम्हारे अंदर पीओ कितने आए। ऐसे अलुमनाई से आप पूछेंगे कि ये पीओ हैं हमारे डिपार्टमेंट के, आप क्या समझते हैं कितने % आपने पीओ को अटेन किया, ठीक है। उसको एवरेज ले लीजिए, इस डायरेक्ट कंपोनेंट और इस इनडायरेक्ट कंपोनेंट के साथ मिला दीजिए, फिर प्लस प्लस साइन है। एक रेशियो आप तय कीजिए, देखिए बार आपको सेट करनी है, ये सारी चीजें आप ही सेट करेंगे, लेकिन जब एक बार सेट कर देंगे तो उसको आपको अचीव करना है, ठीक है। इसीलिए पहले इतना सब सोचते साचते हैं, सारे कमिटीज और सब चीज बनती है ना। फिर आपने कहा कि भाई हम इसको तो 75-25 के रेशियो में मिलाएंगे, ठीक है, मिला लीजिए, ये पीओ का अटेनमेंट हो गया। अब ये पीओ का अटेनमेंट डायरेक्ट कंपोनेंट बन गया पीईओ का। अब इसमें आप फीडबैक ले लीजिए अलुमनाई का, जो 4-5 साल पहले ग्रेजुएट कर चुके हैं, क्योंकि पीईओ की बात हो रही है। एम्प्लॉयर का लीजिए कि हमारे यहाँ का बच्चा 5 साल पहले आपके यहाँ एम्प्लॉय हुआ था, वो आज की डेट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर ये पीईओ है कि नहीं है, पीईओ उसने सेल्फ डेवलप किए नहीं किए। और ये लिस्ट जो है, ये इनडायरेक्ट कंपोनेंट वाली जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप पीओ के अटेनमेंट में पेरेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, पीईओ के अटेनमेंट में आप सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोगों को भी ले सकते हैं, या एट रैंडम कुछ लोगों को ले सकते हैं कि भाई ये इंजीनियरिंग कॉलेज आपके शहर में है, ये कैसा परफॉर्म कर रहा है आप हमें बताइए। तो फीडबैक प्रोसेस, इनडायरेक्ट कंपोनेंट आल्सो हैज टू प्ले अ रोल। फिर इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, वो पीईओ का अटेनमेंट हो गया। तो ये तो बात हुई अटेनमेंट की, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहां क्या दिख रहा है, सीओ का अटेनमेंट आपने कंपेयर किया जो आपने टारगेट सीओ सेट किया हुआ था। आपने कहा था साहब हम अपने सीओ को 85% अचीव करेंगे। अब आप यहां से देखेंगे कि 85 हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए वो 82 रह गया, तो अब ये जो डिफरेंस आया, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, तो ये जो 3% का डिफरेंस आया वो यहाँ पर आपने अकोमोलेट किया। इसी तरह पीओ को कंपेयर किया, टारगेट पीओ जो सेट किया था, फिर डिफरेंस लिया, जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे अकोमोलेट किया। फिर टारगेट पीईओ के साथ पीईओ अटेनमेंट को, एक्चुअल अटेनमेंट को कंपेयर किया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस है, जो डिफरेंस आ रहा है इन सबको मिलाकर आपने प्रपोज इंप्रूवमेंट बताए, जो कि ओबीई एडमिन से आपने लिए, आउटकम बेस्ड एजुकेशन एडमिन से आपने इसको अप्रूव कराया, और ये आपके प्रोग्राम में इंप्रूवमेंट हुआ। अब फिर अगले साल फिर सारी एक्सरसाइज होगी, हर साल हर सेमेस्टर में ये एक्सरसाइज होगी, और सेशन के एंड पर आप फिर बैठेंगे, फिर टारगेट से कंपेयर करेंगे, आप ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं तो आपको करेक्टिव मेजर्स लाने पड़ेंगे। व्हाट यू कांट मेजर तो कर लिया, अब उसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो स्टेप्स हैं वो लाने पड़ेंगे। तो दिस इज अ वेरी यूजफुल ब्लॉक डायग्राम, राइट। ये कल भी आएगा, जब अलुमनाई की बात करेंगे तो हम कल भी इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर कुछ रह गया होगा तो हम कल उसको फिर से डिस्कस करेंगे। तो अब ये समरी ऑफ असेसमेंट मेथड्स टूल्स है। पीईओस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पीओ के लिए क्या चाहिए, सीओ के लिए क्या चाहिए, मोस्टली मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपोनेंट, मतलब जैसे प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी इनडायरेक्ट कंपोनेंट बन जाएगा, हायर स्टडीज रिकॉर्ड इनडायरेक्ट कंपोनेंट बन जाएगा। तभी मैंने कहा वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ब्रॉडली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स होंगे अटेनमेंट के अंदर। अब डायरेक्ट में तो पिछला लेवल आ जाएगा,
इनडायरेक्ट में आप क्या क्या ले सकते हैं, स्काई इज द लिमिट, यू गो ऑन थिंकिंग। ठीक है, अब पीओज अटेनमेंट में मैंने जैसे बताया पास परसेंटेज, वो डायरेक्ट असेसमेंट हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट असेसमेंट अभी मैंने बता दिया। इनडायरेक्ट असेसमेंट में कोर्स आउटकम फीडबैक है, एग्जिट स्टूडेंट फीडबैक है, एलुमनाई फीडबैक है, इंडस्ट्री फीडबैक है। इंडस्ट्री फीडबैक में आप वोकेशनल समर ट्रेनिंग का भी ले सकते हैं और जो जॉब कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं। नेशनली नॉर्म्ड एग्जामिनेशन ले सकते हैं, गेट में कैसी परफॉर्मेंस है, नीट में कैसी परफॉर्मेंस है, कैट में, जीआरई में, आईएल्स में, टोफिल में, वो सब इनडायरेक्ट असेसमेंट बन जाएगा। अच्छा, अब जो रिजल्ट फॉर इम्प्रूव, जो इवैल्यूएशन है वो इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे यूज किया जाए, तीन तरीके हो सकते हैं। या तो अपने क्यूरिकुलम को इम्प्रूव कीजिए, या अपने कोर्स डिलीवरी एंड असेसमेंट को इम्प्रूव कीजिए, या पीओ और पीईओ और सीओ को ही रिवाइज या रीडिफाइन कर दीजिए। आपने बार बहुत ऊपर सेट कर दी है, हो ही नहीं पा रही है वो बार, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा इट इज नॉट कार्व्ड इन स्टोन। तो आप ये तीन काम में से कोई काम करेंगे, क्यूरिकुलर इंप्रूवमेंट कर देंगे, या कोर्स डिलीवरी असेसमेंट को इंप्रूव करेंगे, या उसी को रिवाइज या रीडिफाइन करेंगे। ये आपका ओबीई फ्रेमवर्क हो गया पूरा, है ना, असेसमेंट इवैल्यूएशन, इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट, प्रोग्राम असेसमेंट, कोर्स असेसमेंट। ठीक है, कोर्स असेसमेंट में क्या क्या चाहिए, सिलेबस, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग एक्टिविटीज, असेसमेंट टूल्स, और ये कोर्स लर्निंग आउटकम से आपका कोर्स असेसमेंट आएगा। ऐसे ही आप इंप्रूवमेंट सजेस्ट करेंगे तो आप मिशन विजन को इंप्रूव कर लेंगे, पीईओ को, स्टूडेंट आउटकम्स को, ये इंस्टीट्यूशन लेवल का, ये प्रोग्राम लेवल का, ये कोर्स लेवल का, है ना। और इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इनपुट्स एंड फीडबैक लेंगे उस ओबीई फ्रेमवर्क में। तो सबको साथ लेकर आप सबके ओपिनियन से चलेंगे। अब ये तो खैर एनबीए का क्राइटेरिया है, इसको छोड़ देते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट हैज ईच लर्निंग आउटकम्स बीन अचीव्ड, यस और नो की बात नहीं है ये, इट इज समथिंग वेरी इन्वॉल्व्ड एंड वेरी हाई। अब इस पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस फॉर रीडिफाइनिंग ऑफ पीओस, क्योंकि अगर आपने रीडिफाइन नहीं किया तो आपका डेड प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस है, डायनामिक नहीं है, तो वो यूजलेस हो जाएगा, दैट विल नॉट सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टाइम। अब इसमें आप क्या करें, अलुमनाई सर्वे, ग्रेजुएट सर्वे, इंडस्ट्री प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर, पीओस असेसमेंट, फैकल्टी व्यूज, सबके लीजिए, और फिर आप देखिए कि नीड है रीडिफाइनिंग की या नहीं। राइट, इंप्रूवमेंट इन पीओ अटेनमेंट, अगर यह है कि चाहिए तो क्या कर सकते हैं, मैंने बताया तीन डायमेंशंस हो सकते हैं, या तो क्यूरिकुलम इंप्रूव कर लीजिए जो कि बोर्ड ऑफ स्टडीज करेगी, या डिलीवरी मेथड कीजिए जो कि मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर करेगा, या पीओ को ही चेंज करना है तो प्रोग्राम असेसमेंट कमेटी के पास जाइए और डिपार्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड के पास जाइए। तो ये थ्री डायमेंशंस होती हैं, रिमेंबर, ये मैंने दिया, हाँ ये तीन डायमेंशन दी थी, क्यूरिकुलम इंप्रूवमेंट, कोर्स डिलीवरी एंड असेसमेंट, और रिवाइजिंग रीडिफाइनिंग द पीओस। वही तीन चीजें हमको यहाँ पर करनी है। नीड फॉर रीडिफाइनिंग पीओस, यस, तो आप तीन डायरेक्शन में करिए, क्यूरिकुलम, डिलीवरी, या पीओ को ही चेंज कर दीजिए। ये है व्हेन टू असेस प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फ्यू ईयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, 4 to 5 years, प्रोग्राम आउटकम एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, कोर्स आउटकम अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी कोर्स एट द एंड ऑफ एवरी सेमेस्टर। अब रीडिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पीईओ वेरी सिमिलर, उसी तरह का है। ठीक है, सबका लिया इनपुट लिया, अलुमनाई, ग्रेजुएट, इंडस्ट्री, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर, पीईओस, फैकल्टी व्यूज, फिर आइडेंटिफाई चेंजेस, क्यूरिकुलम में करना है तो बोर्ड ऑफ स्टडीज, रेगुलेशंस में चेंज करना है तो एकेडमिक काउंसिल, और अगर पीईओ में चेंज करना है तो प्रोग्राम असेसमेंट कमेटी और डिपार्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड के पास जाकर उसको फाइनलाइज कर लेना है। तो इन अ नटशेल ये प्रोसेस फॉर रीडिफाइनिंग ऑफ एनी लर्निंग आउटकम होगा। सीओ का भी इसी तरह होगा, या विजन मिशन का भी इसी तरह होगा। सबके इनपुट्स लेंगे और देखेंगे कि इज देयर अ नीड फॉर रीडिफाइनिंग, अगर होता है नो, ठीक है, आपने एक्सरसाइज की और ये महसूस हुआ कि कोई चेंज नहीं करना है, यू कंटिन्यू विद दैट, राइट। और अगर आपने एक्सरसाइज की और पता लगा हाँ चेंज होना चाहिए किसी एक भी लर्निंग आउटकम में, तो आप फिर ये देखिए किधर करना पड़ेगा, क्यूरिकुलम करना है, रेगुलेशंस चेंज करने हैं, असेसमेंट प्रोसेस चेंज करना है, या उस पीईओ, पीओ, विजन, मिशन को ही चेंज कर डालना है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। This was a brief presentation of program outcomes. ये तो पूरी 3 दिन की वर्कशॉप्स होती हैं प्रोग्राम आउटकम बेस्ड एजुकेशन के ऊपर, तब बातें बहुत क्लियर हो पाती हैं। So that is pretty much it. Thank you very much. अब आपके क्वेश्चंस हो तो आई विल बी हैप्पी टू
Thank you, sir. हाँ Yes, sir. I have a question, sir. हाँ, go ahead please. Sir, you talked about the structure, na? Vision, mission, program, education, objective, program, outcome, course outcome. These all are the criteria you talked about. Sir, I'm teaching in a college, so I'm talking about my area. So it's West Bengal. So if I look at our structure of college, sir. So yeah, this is vision is very clear, sir. But the mission of a student, I think it's not being completed, sir. Because what happened? When the system, the semester system has been started, sir. So what happened? We quickly, we just complete our syllabus, and the whole syllabus is structured in a very good manner, has been structured in a good way. But the students are not being able to get the whole thing of the structure, sir, because they're not getting enough time and all the these are the problems of our students. Please mute yourself. Please mute yourself. Let only Lakshmi speak. Yeah. So my question here is that the vision is very clear. A vision of a college is very clear. The college, what will become a college after 10 or 5 years. But the mission of a student, somewhere I think it's being not completed, sir. Okay. So I'll suggest that you have to take it to your program assessment committee only, because they know the situation much better. So you have to take it to them. You tell them the problem that okay, vision we are moving towards, but mission we are not able to. तो अब वो 3 काम करेंगे. या तो आपके curriculum को modify करेंगे. They'll modify the curriculum, or they will tell you how to modify the delivery and assessment method in order to reach that mission. या वो फिर मिशन को ही चेंज कर देंगे depending on the circumstances and the situation you are in. So any 3 of those things have to be done, but that has to be done after consulting you, after consulting all the other faculty members, other stakeholders, and the program assessment committee will do that. Okay? So there is a system to it. You have to go by that system. All right? Sir, I have one question. हाँ, go ahead. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम इस सिस्टम को लागू करते हैं अपने यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में, तो इसके लगाने से टीचर्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा वर्कलोड भी डेवलप होता है. हाँ. क्योंकि हमें सिस्टमैटिकली सारा डेटा मेंटेन करके रखना होगा, सारी चीजें बनाकर रखनी होंगी. तो और हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत वीक है. अगर आप ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में देखें, कॉलेजेस में देखें, और ऑन पेपर तो कई जगह दिख भी जाता है, पर रियल सिचुएशन में ऐसा होता भी नहीं है. तो आपको नहीं लग रहा है कि जब हम इन कामों में लग जाएंगे तो एक्चुअली जो क्वालिटी ऑफ एक पहली चीज तो हम अचीव भी नहीं कर पाएंगे जो टारगेट फिक्स करेंगे, और दूसरा एक्चुअल टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो भी हैम्पर हो सकता है. हाँ. अच्छा देखिए, हमें ये एक्स्ट्रा वर्क इसलिए लग रहा है क्योंकि हम डिसऑर्गेनाइज्ड हैं. अगर हम ऑर्गेनाइज्ड होंगे, सो दिस इज अ वेरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ टीचिंग. ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि आप कहें साहब हम ही नोट्स बनाएं, हम ही पढ़ाएं. भाई पढ़ाने का पार्ट है नोट्स बनाना. नोट्स बनाना इज नॉट ए सेपरेट थिंग. इसी तरह आउटकम बेस्ड एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है. अगर आप डे टू डे बेसिस पर, आज मैंने पढ़ाया उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, मैंने ये पढ़ाया और ये चीज मैंने की, बल्कि मैं तो और इससे आगे की बात करता हूं. मैं तो क्वेश्चन पेपर भी साल भर सेट करता हूं. क्वेश्चन पेपर सिर्फ आखिरी दिन बैठ के नहीं सेट करता हूं. जिस दिन लेक्चर पढ़ाया उसी दिन का क्वेश्चन उस दिन सेट कर लेता हूं. जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में लाऊं, लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक बना होता है. आखिरी दिन मुझे सिर्फ उसमें से कॉपी पेस्ट करना होता है. तो अगर आप ऑर्गेनाइज रहेंगे, डे टू डे करेंगे, ठीक है. एक प्रॉब्लम है, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो ऑलरेडी लेस है, लेकिन वो तो टीचिंग के लिए भी लेस है. तो सारा गुस्सा आपका आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर ही क्यों है? आप कहीं हम टीचिंग नहीं कर सकते इतनी, लेकिन अगर कीजिए तो अच्छे से कीजिए, आउटकम बेस्ड एजुकेशन के साथ कीजिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में कीजिए. ठीक है. इट इज बेटर टू डू थिंग्स फुल हार्टेडली रादर देन डूइंग मेनी थिंग्स हाफ हार्टेडली. थैंक यू सर. और किसी any other discussion or doubt? बताइए. anything? किसी ने पूछा था अभी, शायद चैट बॉक्स में आया था, प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स एट हायर लेवल.
मैंने आपको हायर लेवल पे ही बताया था कि आउटकम वो होता है जो प्रेजेंट में है. If a student has graduated today, the outcome should have been there. अगर आउटकम नहीं है तो इसका मतलब बच्चे ने ग्रेजुएट नहीं किया. मार्क्स भले आ गए हों, लेकिन अगर आउटकम नहीं आया तो उसने ग्रेजुएट नहीं किया इन द रियल सेंस. ऑब्जेक्टिव वो होता है जो वो सेल्फ डेवलप करता है अगले 5, 6, 10 साल में. जैसे मैंने बहुत एग्जाम्पल दी, एलाबोरेट एग्जाम्पल दी. हमने आज उसको सब्जेक्ट पढ़ाया था. हमने उसको ये नहीं बताया था कि तुम कल टीचर बनोगे तो कैसे टीचर बनोगे, या बिजनेस करोगे तो कैसा बिजनेस करोगे, या अगर तुम मैनेजर बनोगे तो कैसे मैनेजर बनोगे. उसने सेल्फ डेवलप अपने आप को कैसा किया, है ना. बिकॉज यू नो, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ इट, दैट इज द बिगिनिंग. तो वो सेल्फ डेवलप कैसा कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव है. लॉन्ग टर्म इज ऑब्जेक्टिव. देखिए, सबसे लॉन्ग टर्म विजन था, उससे छोटा मिशन था, उससे छोटा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो कोर्स, ये प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है. फिर उसके बाद प्रोग्राम आउटकम वो प्रेजेंट है, ठीक है, 3 साल पे प्रोग्राम आउटकम, और कोर्स आउटकम हर सेमेस्टर के एंड पर है. तो ये बिल्कुल पूरा एक माइक्रो से मिनी से माइक्रो लेवल है पूरा. चलिए, और एनी अदर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस? Sir, I think in our future days, we will be progressing more. I think those who are, especially we are in rural areas. So I think in our near future days, our colleges and education system, the approach is good, sir. It's a holistic approach, you know, sir. Yes. So I think, sir, in our near future, we will be progressing more. I think, sir. देखिए, एग्जाम्पल से बहुत सारी बातें समझ में आती हैं. लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल. हम लोग जब ड्राइविंग सीखते हैं ना, कार ड्राइविंग है या इवन स्कूटर ड्राइविंग है, तो शुरू में बड़ा ऑड लगता है यार, ये क्लच दबाओ, फिर गियर चेंज करो, फिर एक्सेलरेटर दो, जरा सा कोऑर्डिनेशन खराब हुआ तो गाड़ी बंद हो जा रही है, रुक जा रही है, ये क्यों, गियर क्लच सिस्टम क्यों है इसके अंदर. बहुत इरिटेट हम लोग शुरू में होते हैं. लेकिन जब ड्राइविंग आ जाती है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है. अपने आप हाथ जो है वो गियर चेंज कर देते हैं, अपने आप पैर जो है वो क्लच दबा देते हैं, ब्रेक दब जाता है. हम सोच के गाड़ी नहीं चलाते हैं. दैट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. सो वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग टू अडॉप्ट आउटकम बेस्ड एजुकेशन. दैट इज व्हाई वी आर बीइंग अ बिट अनकंफर्टेबल. जब ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन बन जाएगा, सो दैट विल बिकम ईजियर, है ना. जैसे बहुत से लोग टाइपिंग करते हैं ना, बहुत से लोग 2 उंगली से टाइप करते हैं, ओ यहाँ ढूंढ रहे हैं, पी वहां ढूंढ रहे हैं, वहां ढूंढ रहे हैं, बड़ा इरिटेट. अगर आप उससे कहो कि भाई 4 उंगलियों से टाइप करना है, तो बड़ा अनईजी लगता है शुरू में. लेकिन जब एक बार आप टाइपिंग सीख जाते हैं तो फिर बहुत इजी हो जाता है ना. तो 1 उंगली शुरू में बहुत अच्छी लगती है, 1 उंगली से टाइप करना, दिख रहा है पूरा कीबोर्ड. 4 उंगली रखने से कीबोर्ड छुप गया, है ना, ऑकवर्ड लगता है. लेकिन धीरे धीरे जब आ जाता है तो दैट बिकम्स वेरी इजी. इसी तरह आउटकम बेस्ड एजुकेशन हमें शुरू में, we are resistant to change. Basically we are resistant to change. That is why once we go for the change, we will see the benefits. और डेवलप्ड कंट्रीज उसके बेनिफिट्स देख रही हैं. कोई हमारे यहाँ नहीं शुरू हुआ आउटकम बेस्ड एजुकेशन. आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाइए, आउटकम बेस्ड एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. एबेट वगैरह उनके यहाँ होते हैं, वो उनको कराना नेसेसरी है, और वो उनके एनुअल फीचर है. दे हैव टू गो फॉर इट. Excuse me, sir. Yes, go ahead. I have a question. सर, हमारे कॉलेज में कमिंग डेज में लैक होने जा रहा है, तो उसके लिए SSR रिपोर्ट भेजनी है. तो सर, उसमें एक टेम्पलेट है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके गए हैं, उनका हायर एजुकेशन में जो प्लेसमेंट है, या फिर वो आपका कहीं पर जॉब के लिए प्लेस्ड हो गए हैं, तो सर इस तरह का डेटा के लिए भी कोई सेल होनी चाहिए, क्योंकि हम उनको फोन कर रहे हैं पुराने कॉन्टेक्ट नंबर से. तो लास्ट 5 years के स्टूडेंट्स हैं, वो इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं कि कोई डेटा दें या फोन अटेंड करें. तो सर उसके लिए तो कोई कॉलेज में इस तरह की सेल या कोई इस तरह का मतलब प्रोविजन होना चाहिए ना डेटा के लिए. जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज अ प्रीकर्सर टू माय लेक्चर टुमारो. मैनेजिंग एलुमनाई रिलेशंस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुमारो. और आपने बिल्कुल सही कहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वही बात है कि हमने आज सीखना शुरू किया, इसलिए हम वी आर लुकिंग फॉर डेटा. अब हम, इफ वी लर्न आवर लेसन्स प्रॉपर्ली, वी विल स्टार्ट मैनेजिंग डेटा फ्रॉम नाउ ऑन, एटलीस्ट फॉर द जनरेशंस डाउन द लाइन. इट विल बिकम इजियर फॉर देम, राइट? So we'll discuss more about it tomorrow. Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम जी. Sir,
सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जैसे कि ये जो आउटकम एजुकेशन के लिए जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके लिए आर यू यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर और यू आर डूइंग मैनुअली और ऑन कंप्यूटर? तो ये मेरा क्वेश्चन है सर। देखिए सॉफ्टवेयर्स हैं और प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस उन सॉफ्टवेयर्स को अफोर्ड भी कर लेते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना इंडिजिनस सिस्टम बनाइए, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन की अलग अलग बैकग्राउंड होती है, हर इंस्टीट्यूशन का अलग अलग सेटअप होता है। आप यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सेल यूज कर लीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर लीजिए, और इस तरह के आप डेटाबेस के जो डेटा मेंटेनेंस के जो टूल्स हैं वो यूज कर लीजिए आप, लेकिन कीजिए अपना सिस्टम सेटअप ताकि आप उसको चेंज कर सकें। वरना आप फिर जो आप खरीदेंगे सॉफ्टवेयर आपको उसके हिसाब से चलना पड़ जाएगा। यू विल हैव टू फिट देयर साइज रादर देन स्टिचिंग टू योर ओन साइज, है ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे रेडीमेड सूट पहनना है या अपना सिला हुआ पहनना है, अपना सिला हुआ जो होता है वो दैट इज मच बेटर। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, चलिए किसी वन मोर क्वेश्चन सर, वन मोर क्वेश्चन। हाँ गो अहेड सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करें तो क्या जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आती हैं उसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस का सुधार हो सकता है? ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं मैं क्योंकि आईआईटीज और ये सिस्टम्स को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली इन द सेम मैनर बट मोर और लेस इट इज ऑन दैट वे ओनली, बट स्टिल दे फेल टू गेट इनटू द बेस्ट टॉप 50 और टॉप 10। सो क्या लग रहा है कि इतना करने के बाद भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे? हम देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें ऐसा है कि उसकी वजह दूसरी है। IITs have carved a niche for themselves. रैंकिंग में नहीं आ पाते होंगे, लेकिन still they have carved a niche given the situation and the funding. बाहर की यूनिवर्सिटीज में कितनी फंडिंग होती है हम सोच भी नहीं सकते, कितनी फंडिंग होती है। आप समझ लीजिए अनलिमिटेड फंडिंग है। व्हेन इट कम्स टू रिसर्च इट इज अनलिमिटेड फंडिंग। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जाकर लिमिट लग जाती है। 100 करोड़ पे नहीं लगेगी तो 50 करोड़ पे लग जाएगी, कहीं ना कहीं लिमिट लग जाती है हमारे यहाँ। पहली बात तो ये। दूसरे मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं, उसकी वजह क्या, देखिए रैंकिंग पूरा अलग सब्जेक्ट है। वजह क्या, देखिए रैंकिंग पॉइंट्स जो आते हैं वो आते हैं आपके रिसर्च से, और हमारे यहाँ ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस IITs की भी आप बात करें तो वो अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस है प्राइमरीली। फ्लैगशिप प्रोग्राम उनका बीटेक है ना। बीटेक में जो बच्चा नहीं एम्प्लॉय हो पाता है वो फिर एमटेक में जाता है, और जो एमटेक में एम्प्लॉय नहीं हो पाता वो PhD में जाता है। तो हम तो छना हुआ भेज रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो हमें रिसर्च कहाँ से मिलेगी? वेस्ट में उल्टा है, उनके यहाँ PhD में सबसे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और उससे खराब एमटेक में होते हैं और सबसे खराब बीटेक में होते हैं, एवरेज, है ना। तो इसलिए उनके पॉइंट ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप वापस आइए अपने ओरिजिनल सवाल पर कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन रैंकिंग में हेल्प करेगी। ये एक चीज, एक आपने प्रोवर्ब इंग्लिश में सुनी होगी, कहावत, कि दिस आउटकम बेस्ड एजुकेशन इज नॉट द एंड इन इटसेल्फ, इट इज अ मीन्स टू द एंड। समझ रहे हैं आप? ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन इज अ टूल टू टेक यू टू क्वालिटी एश्योरेंस। इसीलिए मेरी टाइटल का स्लाइड क्या था, आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन। सो इट इज अ मीन्स टू द एंड, इट इज नॉट द एंड इन इटसेल्फ। आउटकम बेस्ड एजुकेशन के ऊपर सेटिस्फाई होकर नहीं बैठ जाना, इसको एज अ टूल यूज करना है इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन लेवल्स ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन, राइट? यस, ठीक है। अभी कल भी हम मिलेंगे, I'll be there in the first lecture tomorrow also. अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो हम कल भी उसको टेक अप कर सकते हैं, क्योंकि कल का लेक्चर जो होगा वो इस लेक्चर का एक्सटेंशन है बेसिकली। जी बताइए। In which sectors higher education institution enjoys autonomy? Because autonomous institution is really complicated to me. So in which states a higher education institution enjoys autonomy? In which state? In which sectors? In which fields? In academic sectors? In financial? In which sectors? देखिए ऑटोनॉमी जो है ना वो कई तरह की होती है। एक एकेडमिक ऑटोनॉमी होती है, एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, एक रिसर्च ऑटोनॉमी होती है। The best thing is to have autonomy in all the aspects, in every senses of the word.
but autonomy is a privilege that should come with the responsibility. अब IITs हैं, वो autonomous भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो responsible भी हैं. आपने उनको पूरी autonomy, मैं बिल्कुल एग्जाम्पल लूँ, मैंने एक पेपर पढ़ाया, आपने मुझे autonomy दी कि तुम खुद ही इसके क्वेश्चन सेट करो, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई. अब अगर मैं इसको अब्यूज करूंगा इस ऑटोनॉमी को कि आसान क्वेश्चंस बना दूंगा या बच्चों को क्वेश्चंस आउट कर दूंगा, तो इसका मतलब आई एम अब्यूजिंग दी ऑटोनॉमी एंड आई एम बीइंग इररिस्पॉन्सिबल. तो ऑटोनॉमी या कोई भी फ्रीडम, ऑटोनॉमी इज फ्रीडम, राइट, दैट कम्स अलोंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अभी पहले हमको इस लेवल पर पहुंचना है कि हम ऑटोनॉमस हो सकें, एंड देन वी हैव टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली, राइट. अब इकोनॉमी एकेडमिक होनी है, फाइनेंशियल होनी है, गवर्नेंस की होनी है, दैट डिपेंड्स. Thank you. Okay, then let us stop. Thank you very much. We'll meet tomorrow. We can discuss more tomorrow. Thank you, sir. 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 I'll leave now. I'll leave.